जब भी आप क्लास में जाए, भले तो लंच के बाद हो चाहे। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। देखा, मेरी गुड मॉर्निंग तब तक चल रही थी, आपने अपने आप से दिमाग लगाया कि अभी जवाब देना है। आई डिडंट से एनीथिंग, जस्ट अ गुड मॉर्निंग। इट शुड बी अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग, सो एवरीबॉडी गेट एनर्जेटिक। ओके, so take out your copy, take out your copy, everybody, on open your first page। ये सारे इंस्ट्रक्शन देंगे आपको क्लास में, जब हम क्लास कॉपी कराने जा रहे हैं, हम जैसे कॉपी कराने, ठीक है, कॉपी क्लास पर कराने जा रहे हैं। ओपन योर फर्स्ट पेज, top corner here you will write down the date। अच्छा, before that date का फॉर्म क्या होगा ना? हाँ, दिन है नंबर छोड़ दीजिए आप, ठीक है। So children, what is the date today? 21 one day, another way, another way, okay, there are 3 different patterns of writing a date, agree? Yes sir। So अभी ये नहीं होगा कि किसी क्लास में कुछ चल रहा है, किसी क्लास में कुछ चल रहा है, नहीं, everybody will follow a same pattern, one pattern, this one। लिख करके टिक मत करना, ठीक है। एवरीबडी विल फॉलो दिस, और वन थिंग और वी डू, दिस ऑल्सो। Yes sir। 9 देखिए, मेन मतलब ये है कि चाहे आप ये करके चाहे जो भी करके पूरा स्कूल एक कर रहा है, जो मैं करूँगा वही ये भी करेंगे, वही ये भी करेंगे, वही ये भी करेंगे, सब का सब एक ही करेगा, ठीक। कोई नया बंदा आएगा, वो हमारी रूटीन को फॉलो करेगा, हम उस रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, कहीं से भी आएगा, किसी भी XYZ स्कूल से। वी हैव आवर ओन क्राइटेरिया, वी हैव आवर ओन प्रोटोकॉल्स, everybody, every teacher belongs to Naval should be equal, every copy belongs to Naval should be equal। It's not like that copy coming from Rustam is very good, the copy is from Unwal is not good। When you keep the both copies, they should look same, exactly same, understand? So this is the way we will write down the date। Now children, now you write down which chapter we are going to write down, which chapter? Chapter 9। Chapter number 9, chapter number 9। What is the name of the chapter? Rational number। Rational number। So children, put a line under lesson name, put a line अंडर लेसन नेम। ये जितने मैं इंस्ट्रक्शन बोल रहा हूं, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको क्लास में बोलने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कर लेंगे ना? इट्स नॉट वेरी बिग थिंग, यस सर, ऑल नो एवरीथिंग, यस सर, है ना? कुछ ऐसा नहीं जो आप कर सकते, बस इसको एक मैनर में लाना है कि हमारे सारे टीचर एक जैसे बिहेवियर में हो, एक जैसी चीजें हो, है ना? देखिए, आज सभी लोग आइडेंटिकली यू ऑल आर लुकिंग ऑसम टुडे, यस, बट अगर यही ड्रेस कोड कर दिया जाता, लिसन, ड्रेस कोड कर दिया जाता तो क्या होता? तब भी आप अच्छे लगते, बट आप यू रिजेंबल्स you resemble some academy, the people looking outside of the school will say the teachers of that particular school, yes, that is the difference, वो भी आपके लिए साड़ी होती, वो भी सूट होता,
कोई डिफरेंस नहीं, बट जब हम किसी चीज को एक पैटर्न में लाएंगे तो वो चीज अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो here we have written date at the corner we will write out the chapter। ऐसा नहीं है कि चैप्टर बीच में लिखना है फिर उसके नीचे, ऐसा कुछ नहीं, चैप्टर और चैप्टर के साइड में नेम। Sometime it happens the name of a chapter is very long, है ना, very long, mostly SST, है ना, very long name of a chapter, so it will come in 2 lines, one and then 2 lines, not below chapter 9, it will come under this rational number and something and number system something, ऐसा करते हैं। If it is long, rational number and number system, और fraction कर सकते थे या रेशियो हो सकता था something, okay? Now here like A, now answer the following questions, okay? So children put a line under this with a black pen, and the children those who are using pencil they can use red pen to underline, for underlining purpose only. Red pencil is there, red pencil, they will underline with the red pencil. Rest student they will underline with the black pen, okay? And why I am telling you all the copy, question answer copy, I told you not to write your question answer. Yes. Now the question answer copy will be as same as like this, and the copy which you all will make same, the copy will go to the children, सेम थिंग। बच्चों को दिखा दीजिए अपनी कॉपी, देखो बच्चों ये मेरी कॉपी है, जैसे मेरी कॉपी है वैसे ही तुम्हारी भी कॉपी बनेगी। बस ये समोसा है ठंडा हो जाएगा, खाते ठंडा हो जाएगा। हाँ प्लीज गेट इट, बता दीजिए कि जैसे मेरी कॉपी है सेम टू सेम आपकी भी कॉपी वैसे ही बननी है, ठीक? एंड the most important and most typical work is copy correction, agree? चलिए इसको आसान करते हैं, कैसे करें? There are 2 way, क्लास मैनेजमेंट समझते हैं? क्लास मैनेजमेंट टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। I have many tools for that you can manage your class, not today but anyway I will explain you all, but for today copy correction को लेकर make very clear cut, very strong statement toward the student that spelling mistake का काम नहीं, कम से कम spelling mistake नहीं होना चाहिए। The most problematic thing is spelling mistakes, they do spelling mistakes, again it is your headache, it is your headache to write it down and check it। अगर बच्चे गलती नहीं करेंगे तो आपको चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होनी है, गेट इट? तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड। क्लास 1 का बच्चा अगर क्लास 2 में आके स्पेलिंग गलत करता है इसका मतलब है कि क्लास 1 में उसको सही सिखाया नहीं गया। क्लास 2 children are not making mistakes in class 3, it means they have not got learned properly in class 3। So dictation word अभी PT1 में अभी आपको कर लिए हैं, नेक्स्ट में मैं कुछ चीजें और इंट्रोड्यूस करूंगा। डिक्टेशन वर्ड, डिक्टेशन टेस्ट, ओरल, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। डिक्टेशन वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए एकदम। बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा तो आपका काम आसान। योर वर्क इज नाउ the second thing, if I write down the question, I write down the answer, the student will what? They will copy it from the board, it will take some time, meanwhile what you do? Roam in the classroom. Why are you not writing? Why are you having samosa? Why are you not writing?
You should write everything. Yes, sir. है ना? Absolutely. So you need to check who is writing and who is not writing. It is very important. If you not check, the children will have gala time sitting behind. They will not do anything. Class control. And one more thing, what I do. So then, good. Check. My copy is checked. Check. I checked it. Sir, you have done? Good. Yes, sir, spelling is wrong. Correct it. Do it first. स्पेलिंग कर दिया और मैंने चेक कर दिया. अच्छा, इट इज वेरी इफेक्टिव माय डियर टीचर, इट इज वेरी इफेक्टिव. अरे मैम इसकी कॉपी चेक कर दी. मैडम कम टू मी. मैम मेरा भी हो गया. दे विल स्टार्ट राइटिंग वेरी फास्ट. ठीक, अब वहीं थोड़ी टिप्पणी नहीं लगा देना. ए गंदा गंदा लिखा, मिटाओ फाइल को. जल्दी लिखाने के चक्कर में बेटे. तो दे विल राइट इट. दे लव their teachers to come to them. मैं कभी बच्चे को अपने पास नहीं बुलाता हूँ, कभी. मैं हमेशा बच्चे को बुलाता हूँ. हाँ, what you are doing? Tell me, show me, है ना? When I will come to him, he will get afraid. He will also get afraid. He will also get afraid. मेरे सर यहाँ पे. तो ये है क्लास मैनेज रहेगा, क्लास कंट्रोल रहेगा. What we do generally, we are here. Now listen carefully. We are here, we don't leave this area. अरे leave it. Leave it. ठीक है? अब ये परेशान कर रहा है हमको. Stand up. What is the problem? Come here. Come here. Stand here. Stand with me. Stand with me. देखिए statement. Listen. Stand with me. He will not feel that he got punishment. If he will feel that he got punishment, he will complain about it. And he is the disturbing element. He is disturbing the whole class. You called him and made him stand over here. Now, who will make noise? He is here. He is here now. Will he disturb? No. After some time, let it be stand. After some time, you go back. ठीक? Do it. आपको बताएं, I have done many a times. बच्चे को बोला नहीं खड़ा कर दिया. अभी वो पीछे बैठ के शैतानी कर रहा था. अभी जैसे ही आपने उसको बोला कि हम खड़ा कर लिया ना, वो 10 मिनट बाद इंगेज हो जाएगा. मैं बताऊं. साइलेंट. वो बार बार बोलेगा कि मैं बताऊं, तो उसको शांत कर दीजिए. मत पूछिए उससे. बताने मत दीजिए उसको. उसकी मत सुनिए. उसको थोड़ा सा रियलाइज भी हो कि नहीं मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए. तो टेलिंग टू गो बैक. जनरली व्हाट वी डू, कॉपी कंप्लीट नहीं है बच्चे का, तो भी हाँ हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाओ. करते हैं ना? नहीं. नेवर एवर गिव पनिशमेंट, बट पनिशमेंट शुड बी प्रोडक्टिव. आपने खड़ा करा दिया, वो खड़ा है. What is productive in this? कुछ प्रोडक्टिव है? आपका काम कभी भी अच्छा. बच्चा अभी भी बेकार है स्पेलिंग में. ठीक? I have given some word. नहीं याद करते क्या करो? अभी तुरंत याद करके सुनाओ इसको. तुरंत अभी 10 मिनट के अंदर अभी पूछेंगे. अब क्या होगा? Yes, sir. He will learn or not? Yes. What is your motive? What is your motive? To give punishment or to get it learned? So my motive is this, to get it learned. He has to learn that thing. It is very important. If he is not learning, so again the next day he will learn and he will come, because he knows that if I will not learn, my teacher will make me learn in the classroom. So better learn from the home. He will do his homework. आपने खड़ा करा दिया, उसका तो गाला टाइम है. हाँ ये होगा. Enjoy करें. दूसरे बच्चों को परेशान करें. इधर खड़ा कर लीजिए. चलो आप यहाँ खड़े हो. खड़ा करो और सुनाओ. You do whatever you are doing. You teach whatever you are teaching. But tell him to do it right now. Tell him to complete the work. This is the punishment. Not beating or not making them standing. होता यह है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं वो कमजोर ही रह जाते हैं. कारण ये है, अभी जो मैं सेल्फ स्टीम की बात कर रहा था,
सेल्फ स्टीम बच्चों का डाउन नहीं करना चाहिए कभी भी। एज अ टीचर कभी भी बच्चे का सेल्फ स्टीम डाउन नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि अपनी आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज एवरीबॉडी, डू इट क्लोज एवरीबॉडी, क्लोज योर आईज एंड रिमेंबर अ टीचर ऑफ योर पास्ट। I was teacher. So open your eyes, everybody. I was teacher. Remember? कौन था? एक अच्छा वाला रहा होगा और एक खराब वाला रहा होगा। Am I right? अच्छा वाला भी याद आया, खराब वाला भी याद आया। तो what you want to be? What you want to be? जब मेरा स्टूडेंट अपनी आंखें बंद करे तो क्या होना चाहिए? आपकी इमेज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए ना। तो आप कहाँ रखना चाहते हैं अपने आप को, अच्छे वाले में कि खराब वाले में? अच्छे वाले में। तो मत कुछ करिए डियर, आप उसी जैसा बन जाए जिसके जो अभी आपके दिमाग में आया है ना टीचर, अच्छा वाला, आप उसी जैसे बन जाएंगे, उसी जैसा बन जाएंगे। बहुत सिंपल। शेक्सपियर सेड, बच्चे करते हैं ना, मैम जरा ये बताइएगा, मैम नहीं बता पाए तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे मैम को तो आता ही नहीं, मैम बताइए कैसे। सीनियर क्लासेस में अक्सर ये होता है ना। तो टेल देम कि शेक्सपियर सेड अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, इफ यू वांट टू जज योर टीचर डोंट सी हाउ मेनी आंसर्स ही गिव, सी हाउ मेनी क्वेश्चंस ही आस्क। डोंट सी हाउ मेनी आंसर्स ही गिव, सी हाउ मेनी क्वेश्चंस ही आस्क। अब फिर अपने आप को रिमाइंड करिए और ले जाइए जो भी आज तक आपके लाइफ में अच्छा टीचर रहा होगा, जिसे आप अच्छा टीचर कहते थे। जरा सोचिए और बताइए वो सवाल ज्यादा पूछता था कि नहीं? यस, एग्री? और जरा एक डम टीचर को सोच लीजिए जो आपके लाइफ में बड़ा डम था, बेकार था, जिसे आप कहते थे, उसके पास कितना सवाल होता था? वो आपसे कभी क्वेश्चन पूछता था? नहीं। Am I right, sir? So always ask something, always put a question, put in trouble। और ये सारे थॉट जो हम आपको बता रहे, बच्चों को भी बताइए। जो मैंने अभी लिखी थी थॉट, बच्चों को भी बताइए कि दिस इज बेटा, दिस इज राइट। Then the child will come to know that my teacher knows something good, something more what I expect। He will start obeying you, he will start respecting you। नॉलेज के बिहार पे जो आजकल का जो जेनरा है, नॉलेज के बिहार पे रिस्पेक्ट मिलता है आजकल बच्चों से कि टीचर के पास नॉलेज है तो रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर के पास नॉलेज नहीं है। Am I right, sir? सीनियर में यही होता है, सीनियर में यही होता है। जूनियर में भले आप मीठी मीठी बात कर सकते हैं, बट सीनियर में नहीं। सीनियर में तो आपके पास नॉलेज है तो रिस्पेक्ट करेंगे, नॉलेज नहीं है तो टीचर नहीं पढ़ा रहा, क्यों रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? हाँ, तो टीचर्स नहीं पढ़ाते। वही चीज है, रिस्पेक्ट द कम्युनिकेट। इस पे भी मैं लोगों को बात करूंगा। ओके, चलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। सो दिस इज अप टू हियर, इट्स ऑल क्लियर। तो जो अब आप लोगों की कॉपी बनेगी अभी क्वेश्चन आंसर वाली, सेम टू सेम बनेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 विद अ ब्लैक पेन, विद अ ब्लैक पेन, व्हाट इज रेशनल नंबर? ठीक है, अब रेशनल नंबर मैंने लिखा तो दैट्स व्हाई आई रिटन नाउ पुट अ क्वेश्चन मार्क। नाउ आंसर नाउ क्वेश्चन विल बी कैसा होगा? ब्लैक पेन, ब्लैक पेन, दिस विल बी ब्लैक पेन। ठीक है, these all things will be in black pen, है ना? सब कुछ ब्लैक पेन से, अंडरलाइनिंग में ब्लैक पेन, क्वेश्चन विल बी ब्लैक पेन, क्वेश्चन विल बी ब्लैक पेन, आंसर ब्लू पेन। रेशनल नंबर इज ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, नाउ
the formation, the question starts, what is rational number? The answer goes, rational number is. Try to understand what I am saying. Question और सिंपल इंग्लिश की अगर हम बात करें, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर उसी टेंस में देते हैं। टेंस उसी सेम और क्वेश्चन का फॉर्मेशन अब ऐसे भी हम कर सकते हैं, द नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p upon q is known as rational number। कह सकते हैं सर? मगर ये फॉर्मेशन थोड़ा सा उल्टा उल्टा हो जाएगा। रेशनल नंबर हमने कहां कर दिया, पीछे कर दिया, हमने ऐसे आंसर दिया, फिर सही है, कोई गलत नहीं है कि द नंबर व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ p upon q इज नोन एज रेशनल नंबर वेयर p and q belongs to इंटीजर and q is not equal to Zero. 0। ऐसा डेफिनेशन देंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसे होना चाहिए, रेशनल नंबर इज a number which is written in form of p upon q where q is not 0 and p upon q belongs to any integer। देखिए हो गया ना सर? So the way the question is asking, the same way you are giving the answer। Now after completing the answer, you will give one line gap, put a line, black pen, then again you start a question number 2। Question number 2, okay? So likewise you will do the all question answer, okay? Is it clear? Yes, sir. Sir? Is it clear? अब जो कॉपी आप लोग बनाएंगे सेम ऐसे ही बनाएंगे।